Hello students, you're once again welcome to History Online classes. I am Didi Doda from Saima Education Point, and today in this video we are going to discuss class 11th History chapter number 3, An Empire Across the Three Continents, page number 60. Here we are talking about the Roman Empire. The Roman Empire can broadly be divided into two phases. Two phases means two time periods, early and late, divided by the 3rd century as a sort of historical watershed between them. Means 3rd century was the historical watershed, means historical main point. The 3rd century was main point, means before the half of 3rd century it was early empire, and after the half of 3rd century it was late empire. In other words, the whole period down to the main part of the 3rd century, main part of the 3rd century means half of the 3rd century, can be called the early empire, and the period after that the late empire. And the period after the half of 3rd century till the 7th century was called the later empire. A major difference between the two superpowers, the Roman Empire and the Iranian Empire, and their respective empires, was that the Roman Empire was culturally much more diverse than that of Iran. Diverse means different type of people, different type of language, different type of religion was there in Roman Empire, which was not there in Iran. The Parthian and later the Sasanian and Parthian, these were the two dynasties, the dynasties that ruled Iran in this period. These two dynasties were there. These were the monarch who ruled over Iran during this time period. They ruled over a population that was largely Iranian, means almost Muslim people were there. The whole population of Iranian Empire was Muslim. The Roman Empire, by contrast means opposite. In Roman Empire was a mosaic of territories. Mosaic means different colorful of territories and cultures that were chiefly bound together. Bound together means जुड़ी हुई थी by a common system of government. Different type of people were there, but a common system of government was there. Many languages were spoken in the empire, but for the purpose of administration, means for official purpose, Latin and Greek were the most widely used. Two languages were used, Latin and Greek, indeed the only languages. Students, this is very important page of this chapter, so please read it carefully. The upper class of the East spoke and wrote in Greek. जो ईस्टर्न पार्ट में जो अपर क्लास लोग थे, they spoke and wrote in Greek. Those of the West in Latin, लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट में रहते थे वो लैटिन लैंग्वेज में राइट करते थे और स्पीक करते थे. एंड the boundary between those broad language area ran somewhere across the middle of the Mediterranean. और जो मेडिटेरियन सी जो है उसके आसपास का जो इलाका था, या उसके साउथ में जो एरिया था, जो अफ्रीका में एरिया था, बिटवीन द अफ्रीकन प्रोविंसेस ऑफ ट्रिपोलिटेनिया. जो ट्रिपोलिटेनिया का एरिया था, वहाँ पे दो प्रांत थे. एक तो ट्रिपोलिटेनिया विच वॉज लैटिन स्पीकिंग, एंड साइरेनाइका. और साइरेनाइका जो था ये भी ग्रीक स्पीकिंग था. अफ्रीका के टू प्रोविंसेस थे, ट्रिपोलिटेनिया और साइरेनाइका. इसमें ट्रिपोलिटेनिया में तो लैटिन स्पीकिंग थे और साइरेनाइका में ग्रीक स्पीकिंग थे. ऑल दोज हु लिव्ड इन द एम्पायर वर सब्जेक्ट ऑफ अ सिंगुलर. लेकिन इतने बड़े एम्पायर में जो लोग रहते थे, दे वर सब्जेक्ट ऑफ अ सिंगल रूलर, द एम्परर. इन सब को
ये सब एक ही आदमी के अंडर में थे और वो था किंग एम्परर, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव्ड एंड व्हाट लैंग्वेज दे स्पोक। चाहे वो अफ्रीका में रहने वाले हों, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज स्पीक करते हों, चाहे वो ग्रीक लैंग्वेज स्पीक करते हों, चाहे कैसी भी उनकी कल्चर हो, दे ऑल वर सब्जेक्ट टू अ सिंगल रूलर एंड दैट वाज द एम्परर। द regime established by Augustus. Augustus is considered to be the first emperor of Roman Empire because Augustus से पहले क्या था, बिल्कुल स्टार्टिंग में मोनार्क थे, जो किंग होते थे, सारा वो जैसा चाहते थे वैसा ही सिस्टम होता था, वैसा ही काम किया जाता था। उनके बाद रिपब्लिक सिस्टम आया, रिपब्लिक गवर्नमेंट, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था रिपब्लिक। उसमें सीनेट जो थी, जैसे अपने पार्लियामेंट होती है इंडिया में वैसे ही सीनेट होती है, वो सीनेट डिसाइड करती थी। उसमें एम्परर जो होता था वो सीनेट की सलाह के साथ भी वर्क करता था, अकेला एम्परर कुछ नहीं कर पाता था, जैसा सीनेट चाहती थी वैसा होता था। मीन्स सीनेट उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, बहुत पावरफुल थी। लेकिन 27th BC में जब ऑगस्टस आया, 27th BC में जब ऑगस्टस एज ए एम्परर बना, किंग बना, तो उसने एक अपना प्रिंसिपल शुरू किया, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बनाई, उसका नाम था दैट वाज कॉल्ड द प्रिंसिपेट। उसको क्या बोला गया, प्रिंसिपेट बोला गया। उसमें क्या किया उसने, किंग भी बन गया और जो रिपब्लिक में सीनेट का जो इम्पोर्टेंट रोल था उसको भी उसने साथ में थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस दी। तो मीन्स एक मिक्स सिस्टम उसने शुरू किया। प्रिंसिपेट में क्या होता था, ऑल्दो ऑगस्टस वाज द सोल रूलर, सोल मीन्स ओनली रूलर एंड द ओनली रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, और उसके पास पावर भी थी, द फिक्शन वाज केप्ट अलाइव। लेकिन वो सिस्टम आगे चलाया गया। कौन सा सिस्टम, रिपब्लिक सिस्टम, जिसमें सीनेट को इम्पोर्टेंस देते हैं, दैट ही वाज एक्चुअली ओनली द लीडिंग सिटीजन। लेकिन उसको क्या, वो उसने अपने आप को क्या बनाया, ओनली द लीडिंग सिटीजन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, प्रिंसिप्स इन लैटिन। जैसे इंडिया में द प्रेजिडेंट इज़ द लीडिंग पर्सन, लेकिन वो सारा काम अपने आप नहीं कर सकते, उसको भी प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो ये सिस्टम रोम में 27th BC में ऑगस्टस ने शुरू किया था। नॉट द एब्सोल्यूट रूलर, वो अपने आप को एब्सोल्यूट रूलर जैसे मोनार्क लोग होते थे कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, ऐसे नहीं था, उसने अपने आप को ऐसा नहीं बनाया था। तो दिस वॉज डन आउट ऑफ द रिस्पेक्ट फॉर द सीनेट, दिस वॉज ओनली जस्ट ड्यू टू द रिस्पेक्ट ऑफ द सीनेट, द बॉडी विच हैड कंट्रोल्ड रोम अर्लियर, जो 27th BC से पहले जिसने रोम को सेंचुरीज तक, कई सौ सालों तक अपने कंट्रोल में रखा था। इन द डे व्हेन इट वाज द रिपब्लिक, जब वो रिपब्लिक था, जब रोम रिपब्लिक था, तब क्या था, सीनेट का सारा रोल हुआ करता था। तो उस सीनेट को, क्योंकि इतने टाइम से इतने सेंचुरीज से रोम को वो कंट्रोल कर रही थी, इसलिए उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए ऑगस्टस ने एक सिस्टम शुरू किया जिसमें वो अपने आप को उसने एम्परर बनाया, बट उसमें सीनेट का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल था। The Senate had existed in Rome for centuries and had been and remained a body representing the aristocracy. Aristocracy means rich people, rich families, first class. तो ये सीनेट जो होती है, इसमें कौन लोग होते थे, एरिस्टोक्रेसी, मतलब बड़े बड़े जो घरों के लोग होते थे वो इस बॉडी में, इस सीनेट में इसके मेंबर्स होते थे। दैट इज़ द वेल्दियस्ट फैमिलीज ऑफ रोमन एंड लेटर इटालियन डिसेंट, मेनली लैंड ओनर्स। जो लैंड ओनर होते थे, वेल्दियस्ट फैमिलीज होती थी, वो इसके पार्ट होते थे। मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्ट्रीज दैट सर्वाइव इन ग्रीक एंड लैटिन वर रिटन बाय द पीपल फ्रॉम अ सीनेट्रियल बैकग्राउंड। तो वही लोग जो सीनेट के मेंबर होते थे, वही रोमन जो किंगडम थी उसकी हिस्ट्रीज लिखते थे। फ्रॉम दीज इट इज़ क्लियर दैट द एम्परर्स वर जज्ड बाय हाउ दे बिहेव टुवर्ड्स द सीनेट। और एम्परर जज किया जाता था कि हाउ द बिहेव टुवर्ड्स सीनेट। जो सीनेट के साथ अच्छा बिहेव करता था दैट वाज द बेस्ट किंग, और जो अच्छा बिहेव नहीं करता था वो दैट वाज द वर्स्ट किंग। द वर्स्ट एम्परर वर दोज हु वर हॉस्टाइल टू द सीनेट्रियल क्लास।
द वर्स्ट एम्पर वर दोज हु वर होस्टाइल, होस्टाइल मीन्स एनिमी, और अगेंस्ट टू द सीनेटेरियल क्लास, जो सीनेट क्लास जो थी, सीनेट जो थी, जो सीनेट के मेंबर्स थे, अगर उनके खिलाफ होता था एम्पर तो दैट वाज द वर्स्ट एम्पर, बिहेविंग विद सस्पिशन एंड ब्रूटली एंड वायलेंस. Many senators yearned means wanted to go back to the days of the republic. रिपब्लिक डेज में जाना चाहते थे क्योंकि सीनेट को उसमें क्या थी, बड़ी पावर मिली हुई थी. बट मोस्ट मस्ट हैव रियलाइज दैट दिस वॉज इम्पॉसिबल. लेकिन कुछ एक मेंबर्स ऐसे थे, उनको ये महसूस हो गया था, उन्होंने फील कर लिया था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट टू द एम्परर एंड द सीनेट, द अदर की इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पीरियल रूल वॉज द आर्मी. तो थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन थी दैट वाज आर्मी. फर्स्ट कौन था, एम्परर, सेकंड सीनेट एंड थर्ड वाज आर्मी. अनलाइक द आर्मी ऑफ इट्स राइवल इन द पर्शियन एम्पायर, पर्शियन मीन्स ईरानियन एम्पायर में जो इसका राइवल था, इसका एनिमी था रोमन एम्पायर का, उसमें क्या होता था कि विच वाज अ कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी. उसकी जो आर्मी होती थी वो होती थी फोर्सफुली आर्मी बनाई जाती है, जैसे लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में मतलब अपॉइंट किया जाता था. तो उसके अनलाइक मीन्स उससे अलग होती थी जो द रोमन्स हैड अ पेड प्रोफेशनल आर्मी. लेकिन रोमन्स की क्या थी, एक पेड प्रोफेशनल आर्मी थी, वेयर सोल्जर्स हैड टू पुट इन अ मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स ऑफ सर्विस. और रोमन साम्राज्य में क्या होता था, रोमन किंगडम में क्या होता था, 25 ईयर्स जो हर सोल्जर है अपनी लाइफ के वो कंपलसरी देता था. और पेड प्रोफेशनल आर्मी थी. द आर्मी Indeed, the existence of a paid army was a distinctive feature of the Roman Empire. तो ये एक इसकी बहुत बड़ी फीचर थी रोमन एम्पायर की कि इसकी जो आर्मी थी वो थी पेड आर्मी. द आर्मी वॉज द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इन द एम्पायर, 6 लाख बाई द 4th सेंचुरी. और 4th सेंचुरी तक उस आर्मी में लगभग 6 लाख सोल्जर्स थे. एंड इट सर्टेनली हैड द पावर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द एम्परर. और ये किसी भी एम्परर की मतलब अगर ये उस एम्परर के बिल्कुल साथ देती तो उसको विजयी बना सकती थी, और अगर उस एम्परर के खिलाफ जाती तो उसको हरा सकती थी. तो इट कैन डिसाइड द फेट ऑफ द एम्परर. द सोल्जर वुड कंस्टेंटली एजिटेट फॉर बेटर वेजेस एंड सर्विस कंडीशन. क्योंकि ये बहुत बड़ी आर्मी थी इसलिए वो टाइम टू टाइम अपनी बेटर वेजेस और सर्विस कंडीशन को लेके आंदोलन करते रहते थे. तो दीज एजिटेशंस ऑफन टुक द फॉर्म ऑफ म्यूटनीज. और ये जो एजिटेशन, छोटे छोटे विद्रोह होते थे, ये कई बार म्यूटनीज बन जाते थे, मतलब बहुत बड़े विद्रोह बन जाते थे. इफ़ द सोल्जर्स फेल्ट लेट डाउन, और अगर सोल्जर्स ये फील करते थे कि हमारी इंसल्ट हो गई है बाय देयर जनरल्स और इवन द एम्परर्स, तो अगर वो ये फील करते थे कि उनकी जनरल्स या एम्परर ने उनको लेट डाउन कर दिया, उनकी इंसल्ट कर दिया है, तो ये क्या हो जाते थे, इन द फॉर्म ऑफ म्यूटनीज. तो ये विद्रोह भड़क जाते थे, बहुत बड़े विद्रोह हो जाते थे. अगेन आर पिक्चर ऑफ द रोमन आर्मी डिपेंड्स लार्जली ऑन द वे दे वर पोर्ट्रेड बाय हिस्टोरियन विद सिनेट्रिकल सिंपथीज. द सीनेट हेटेड एंड फियर्ड द आर्मी. जो सीनेट होती थी वो आर्मी से हेट करती थी, उसके डरती भी थी, बिकॉज इट वॉज अ सोर्स ऑफ ऑफन अनप्रिडिक्टेबल. क्योंकि आर्मी जो होती थी वो एक वायलेंस का, अनप्रिडिक्टेबल वायलेंस का सोर्स होती थी. कभी भी लड़ाई झगड़ा हो सकता था, स्पेशली इन द टेंस कंडीशन ऑफ द 3rd सेंचुरी. स्पेशली 3rd सेंचुरी में जब कंडीशन सही नहीं थी, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉर हुए थे उस टाइम में. व्हेन गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टैक्स मोर हेविली, जब गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए थे, उनको टैक्स पे करने के लिए बोला गया था, टू पे फॉर इट्स माउंटिंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर. क्योंकि मिलिट्री के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उस टाइम गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड की गई थी. टू सम अप, द एम्परर, द एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी वर द 3 मेन प्लेयर्स. इफ़ वी कंक्लूड, we can see that the emperor, the aristocracy means the senate, and the army were the 3 main players in the political history of the empire. The success of individual emperor depended on their control of the army. आर्मी के ऊपर कितना कंट्रोल रखता था एम्परर, ये उसकी सक्सेस इस पर डिपेंड करती थी. एंड व्हेन द आर्मीज वर डिवाइडेड, द रिजल्ट यूजली वॉज सिविल वॉर. और आर्मी अगर डिवाइड हो जाती थी तो उसमें क्या होते थे, फिर सिविल वॉर होते थे.
except for one notorious year 69 CE when 4 emperors mounted the throne in quick succession. 69 CE में 4 एमर्स, 4 राजा एकदम से बदल गए थे. उस टाइम में लड़ाई झगड़े बहुत हुए थे. तो माउंटेड द थ्रोन इन क्विक सक्सेशन, तो 4 राजा उस टाइम में बदल गए थे. द फर्स्ट 2 सेंचुरीज वर ऑन द होल फ्री फ्रॉम सिविल वॉर. तो फर्स्ट 2 सेंचुरीज में सिविल वॉर नहीं हुआ था. एंड इन दिस सेंस रिलेटिवली स्टेबल, वहाँ पे वो स्टेबल था, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी. सक्सेशन टू द थ्रोन वॉज बेस्ड एज फार एज पॉसिबल ऑन फैमिली डिसेंट. तो सक्सेशन भी फैमिली डिसेंट पे हुआ करता था, इधर नेचुरल और अडोप्टिव. जैसे एक राजा होता था तो उसका बेटा आगे राजा बनता था, या फिर वो अडोप्टिव मीन्स या फिर वो गोद ले लेते थे किसी बच्चे को, वो राजा बनता था. एंड इवन द आर्मी वॉज स्ट्रांगली वेडेड टू दिस प्रिंसिपल. फॉर एग्जाम्पल टाइबेरियस 14 to 37 CE में टाइबेरियस नाम का राजा था, द सेकेंड इन द लॉन्ग लाइन ऑफ रोमन एम्पर. ऑगस्टस के बाद टाइबेरियस जो था वॉज नॉट द नॉर्मल सन ऑफ ऑगस्टस. ऑगस्टस का बेटा नहीं था. द रूलर हु फाउंडेड द प्रिंसिपेट. ऑगस्टस वो जिसने प्रिंसिपेट का रूल फाउंड किया था, प्रिंसिपेट का रूल जिसने चलाया था. ये जो टाइबेरियस था वो ऑगस्टस का नेचुरल बेटा नहीं था, बट ऑगस्टस अडोप्टेड हिम, जबकि ऑगस्टस ने उसको अडोप्ट किया था टू एंश्योर अ स्मूथ ट्रांजेक्शन. मतलब आगे उसका राज चलता रहे, उसका किंगडम चलता रहे स्मूथली, उसके लिए उसने उसको वो किया था, अडोप्ट किया था. एक्सटर्नल वॉरफेयर, सिविल वॉर तो होता है किसी कंट्री के बीच अपनी खुद की जैसे 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाना और उनमें फाइटिंग हो जाना, दैट इज़ सिविल वॉर. एक्सटर्नल वॉर मीन्स किसी दूसरे राज्य को कैप्चर करने के लिए फाइट होना. तो एक्सटर्नल वॉर वॉज ऑल्सो मच लेस कॉमन इन द फर्स्ट 2 सेंचुरीज. तो एक्सटर्नल वॉर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं था उस समय में, फर्स्ट 2 सेंचुरीज में. द एम्पायर इनहेरिटेड बाय टाइबेरियस फ्रॉम ऑगस्टस. ऑगस्टस के बाद जो टाइबेरियस आया था उसने जो भी एम्पायर उसको जो मिला, दैट वाज ऑलरेडी सो वास्ट, वो इतना बड़ा था, दैट फर्दर एक्सपेंशन वाज फेल्ट टू बी अननेसेसरी. तो ऐसा इतना बड़ा था कि ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको कि मैं किसी पे अटैक करके साथ वाले किंगडम पे उसको मतलब अपने राज्य को बढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य था ऑलरेडी. इनफैक्ट द ऑगस्टन एज इज़ रिमेंबर्ड फॉर द पीस. जो ऑगस्टन एज है दैट इज़ रिमेंबर्ड फॉर पीस. इट अशर्ड in after decades of eternal strife and centuries of military conquest. The only major campaign of expansion in the early empire was Trajan's fruitless occupation of territory across the Euphrates. तो एक जो मेजर कैंपेन जो अपने किंगडम को एक्सपेंड करने का था वो चलाया था. इनके बाद में जो आया था ट्रेजन किंग जो आया था उसने चलाया था. दैट वाज आल्सो फ्रूटलेस, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी. एंड दैट वाज अक्रॉस द यूफ्रेट्स. एक ईरान में एक यूफ्रेट एक रिवर है, उसके आगे जाके उसने अटैक किया था. तो इन द ईयर 113 to 17 CE अबेंडन्ड बाय हिज सक्सेसर. उसके जो सक्सेसर थे उसने बाद में उसको छोड़ दिया था. For today this much only. Next pages or next point we'll discuss in next video. Till then, thank you very much.